بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں لے کر حاضر ہوا ہوں حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، جس بیان کا عنوان ہے پیارے نبی کی اپنی امت سے محبت۔ دوستو چلے آئیے، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بیان کی طرف کہ سبھی حضرات بیان کو علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی فلانی یہودیہ عورت شاعرہ ہے، شعر کرتی ہے، میری توہین کرتی ہے، آج میرا دل دکھا ہے۔ کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ اور یہ فرما دیا جو اس کو قتل کرے گا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہر صحابی نے یہ اعلان سنا، بلا سرکار کی زبان سے اعلان سنے، مدینہ منورہ ہو، صحابہ کرام کی جماعت ہو، اور آپ نے دکھے دل سے فرمایا مجھے صدمہ پہنچا، فلانی عورت میرے خلاف شعر کہتی ہے، میری توہین کرتی ہے، مجھے تکلیف ہوئی، کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ جتنے صحابہ کرام تھے تمام نے ارادہ کر لیا، میں کروں گا، وہ کہتا ہے میں قتل کروں گا، وہ کہتا ہے میں قتل کروں گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ محتاج لاچار مجبور نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم مسجد کے کونے میں ایک طرف جا کے سر سجدے میں رکھ کر رونے لگا، الہی اور میرے پروردگار کسی حملے میں جانے کے قابل میں نہیں، حملہ میں نہیں کر سکتا، حملہ میں نہیں روک سکتا، تیرے محبوب نے جنت کا وعدہ فرمایا، میں تیری منت کرتا ہوں میرے پروردگار تو بے نیاز ہے، اس عورت کا قتل تو میرے نصیب کر دے۔ آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، حضور کی منشا یہ تو نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تو نہیں تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم بغیر آنکھوں والا آدمی جا کے قتل کرے۔ آپ نے تو مدینے کے جوانوں کے لیے اعلان کیا تھا، بہادروں کے لیے اعلان کیا تھا، مجاہدوں کے لیے اعلان کیا تھا، آپ نے تو مدینے کے جو جرأت مند شجاع جوان تھے ان کے لیے اعلان کیا تھا، اور جب جنت کا نام سنا عبداللہ بن ام مکتوم نے رو رو کر آنسو بہا دیے، یا اللہ تیری کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں مجھے عطا کر دے۔ اور دعا مانگی، عشاء کی نماز پڑھی، پتہ ہے یہ کون صحابی ہے؟ اللہ اکبر، پھٹے ہوئے کپڑے تھے اس کے، پرانے کپڑے تھے، اور آپ کی خدمت میں آیا مسئلہ پوچھنے، آپ کی خدمت میں آیا دین کا مسئلہ پوچھنے۔ آپ کے پاس بیٹھا تھا ابو جہل، آپ کے پاس بیٹھے تھے بڑے بڑے کفار کے سردار۔ توجہ کرنا، آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ نابینا آ گیا، محتاج پرانے کپڑوں والا، یہ بڑے بڑے امیر اب اٹھ کے چلے جائیں گے، اچھی بھلی تبلیغ سن رہے تھے، میری ان کی بات چیت ہو رہی تھی، شاید یہ ایمان لے آتے، اب اس میلے کپڑوں والوں کو والے کو دیکھ کر یہ اٹھ جائیں گے۔ نبی کے دل میں بات آئی اتنی سی، سبحان اللہ، یہ میلے کپڑوں والا، پھٹے پرانے کپڑوں والا، یہ محتاج نابینا اس وقت کیوں آ گیا؟ فوراً جبریل آیا، قرآن لے آیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اور میرے محبوب کیا میرے ایک نبی نے کو دیکھ کر آپ نے تیوری چڑھائی، منہ پھیر لیا، کیوں رو گردانی کی؟
तंग क्यों हुए? जिन अमीरों को इस्लाम की दौलत देना चाहते हो, वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इन दौलतमंदों को मैंने ईमान देना ही नहीं। आपने रूगर्दानी क्यों की? आपने एराज क्यों किया? आपने तेवड़ी क्यों चढ़ाई? अल्लाह पाक ने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झिड़की दी, खबरदार मेरे गरीब से अगर मुंह चढ़ा। ये वो सहाबी है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने अपने नबी को भी डांट दिया था। खुदा जाने उसके दिल में दीन और ईमान और कुरान की और नबी की कितनी अजमत होगी, जिसका गवाह खुदा बना, जिसका हिमायती खुदा बनकर आया। सजदे में पढ़ के दुआ मांग ली, ईशा की नमाज का इंतजार किया, ईशा की नमाज पढ़कर पूछता पुछाता उस औरत के मकान पे पहुंचा। नाबीना आदमी तलवार हाथ में, जो देखे वही मजाक समझे, हाफिज जी आज कहाँ चले, तलवार आपका तलवार का क्या मेरे ले क्या करोगे? लगा भाई अल्लाह का सहारा लेके चला हूं, मांगा है उससे जो मिल गया। तो नबी का वादा जन्नत का है, सुभान अल्लाह। मकान मालूम कर लिया, दीवार के ऊपर से फांद कर अंदर चला गया। वो यहूदी औरत सोई हुई थी यहूदी औरत। सोचा अगर यूं वार करूंगा तो बच ना जाए, सीने पर तलवार रखकर वजन दे दिया, 2 टुकड़े हो गए, कत्ल कर दिया नबी की दुश्मन औरत को। मेरे तेरे जैसा होता उसी वक्त कह देता आओ मेरे नाम का नारा मारो। कत्ल करके फिर वापिस आया मस्जिद नबी में, फिर सजदे शुक्र में रो रहा, इलाही मेरा काम मुकद्दर था, ये तो तेरी मेहरबानी हुई, मैं ऐसा काम कर सकता था, ये तो तेरी मेहरबानी हुई। न गली में किसी को बताया, हुजूर के दरवाजे पे पहुंच जाता, या रसूल अल्लाह खुश हो जाओ, मेरे लिए जन्नत की दुआ आपने कर दी, सुभान अल्लाह, मैं वो काम कर आया हूं। पता चला जो अल्लाह की रजा के लिए कोई कुछ काम करता है वो गाता फिरता ही नहीं, वो शोर नहीं मचाता, वो हंगामे नहीं किया करता। इसी को कहता है कि लब बंदो चश्म बंदो बाशिबन ताबीनी सिर अकबर मा बखन। इश्क का मजा तो तब आता आंखें बंद हो जाए, जुबान बंद हो जाए, दिल ही दिल में महबूब से गुफ्तगू होती रहे। कहते हैं ना दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जी चाहा गर्दन झुका के देख ली। मोहब्बत का तस्का तो पहले पैदा करो, इश्क कहते किसे है पहले ये तो जानने की कोशिश करो। सहाबी ने सारी रात अल्लाह अल्लाह में गुजारी, खुदा का शुक्र अदा किया। नमाज फजर से पहले अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन के जरिए मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खबर कर दी कि अब्दुल्लाह बिन मक्तूम ने औरत को कत्ल कर दिया। आपने फजर की नमाज पढ़ाई, सुभान अल्लाह। लोगों, उन लोगों के मुकद्दर को क्या कहोगे जो सरकार के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, जिनका इमाम इमामुल अंबिया हो, जिनका इमाम काली कमली वाला हो, शहंशाह कायनात हो, मफ़ख़र मौजूदात हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके इमाम हो, मुक्तदी कैसे होंगे? सलाम फिरने के बाद तमाम लोग उठ के चलने लगे। आपने फरमाया ठहर जाओ, मैं तुम्हें जन्नती आदमी की ज़ियारत कराऊंगा। सहाबा बड़े हैरान हुए कि जन्नती कौन आज आ गया। ओ परले कोने में से हाथ पकड़ कर लाए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह।
इस जवान का कितना खुश नसीबा, कितना ऊंचा मुकद्दर। आप हाथ पकड़ कर लाए, बीच में खड़ा कर दिया, फरमाया देखो जिसने जन्नती आदमी की ज़ियारत करनी हो वो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को देख ले। इसके कपड़े देखो, इसका लिबास देखो, इसका हुलिया देखो, इसकी वज़ाकता देखो, पर इसके लिए जो जन्नत का मैंने वादा किया था वो बिल्कुल पक्का है। उस औरत को रात इसने कत्ल कर डाला। सारे सहाबा ले गए। हम तो सोच रहे थे कल दिन में उसका मकान देखेंगे, पता लगाएंगे, फिर उसका रगड़ा निकालेंगे। ये तो अब्दुल्ला बिन मक्तूम नाबीन नहीं, अच्छा रहा रातों रात ही हाथ मार गया। मैं अर्ज कर रहा था कि नबी की जुबान पर यकीन करने वाले लोग कभी ये नहीं सोचा करते कि अब होगा क्या। वो तो फिर अल्लाह का नाम लेकर कुफर को मिटाने के लिए टूट पड़ते हैं। आज कुफर को मिटाए कौन? हम खुद कुफर को चमका रहे हैं, शिरक को चमका रहे हैं, बिदअत सुन्नतों को मिटा रहे हैं, बिदअतों को चमका रहे हैं। फिर मुजाहिद कैसे पैदा हो? फिर कैसे लोग गाजी बने? कैसे लोग शहादत के प्याले पिए? जो मर जाता है 6 महीने तो उसका पीछा छोड़ते ही नहीं, लगे रहते हैं। आज फलाना है, आज तीजा है, आज फलाना है, आज फलाना, लगे रहो। कोई सूरत ऐसी नहीं जिससे कि कुरान करीम की तबलीग करे। मैं तो इन लोगों से एक सवाल करता हूं, तुम्हारा कुरान से क्या बैर है? तुम लोगों को कुरान क्यों नहीं सुनाते? अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लज़ीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व ऊदू फी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लौ कफ़िरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम। और लोगों आओ जिनको मेरे नाम की वजह से, मेरे दीन की वजह से, जिनको अल्लाह पाक फरमाते मेरी राह में सताया गया, टुकड़े कर दिए गए। सहाबी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, माशाअल्लाह, बीरे मऊना से गिरफ्तार करके लाए, मक्के में कैद कर दिया। मक्के के सरदारों ने फांसी का हुक्म सादिर कर दिया, खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया। कई दिन हो गए सहाबी भूखा है, प्यासा है, कोठड़ी में बंद कर रखा है। अल्लाहु अकबर। वो काफिरा औरत कहती है जिसने अपने मकान में बंद कर रखा था हजरत खुब्बाब इब्न आरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कि मैं एक दिन रोशनदान में से झांक कर देखने लगी कि हमने इसको कई दिन से भूखा प्यासा रखा हुआ है, इसका हाल क्या है। मक्के की काफिरा औरत कहती है जब मैंने रोशनदान में से झांक कर देखा तो मौसम उस जमाने में नहीं थी, खुब्बाब अंगूरों का अंगूर खा रहा था। नबी का सहाबी मक्के वालों की कैद में उन्होंने खाना बंद कर दिया, उन्होंने पानी बंद कर दिया और ये अंगूर खा रहा है। मक्के की काफिरा औरत कहती है मैंने पूछा ये अंगूर कहां से ला? मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। मक्के वालों तुमने मेरा खाना बंद किया, अरस वाले ने मुझे खिला दिया। सहाबी को जिस वक्त मैदान में ले गए फांसी चढ़ाने के लिए, मक्के के सरदारों ने पूछा, सरदारों ने पूछा कि अगर तू एक बात हमारी मान ले हम तुझे छोड़ देंगे, कि अपनी जुबान से यूं कह दे कि मेरी जगह मेरे नबी को लाकर
नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक फांसी चढ़ा दो। मेरी जगह मेरे नबी को लाकर सजा दे दो, अगर तू जुबान से जो कह दे हम तुझे छोड़ देंगे। और ये बात थी कि हुजूर उनके कब्जे में नहीं थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर मदीने पाक में है, इनके इख्तियार में नहीं, इनके कब्जे में नहीं, इनके काबू में नहीं। सहाबी जानता था कि हुजूर इनके हाथ आ ही नहीं सकते जान छुड़ाने के लिए। अगर वो ये लफ्ज कह देता तो क्या बात थी। मिसाल के तौर पर यूं समझो, अगर हमारा आदमी कोई हिंदुस्तान में फंस जाए और काफिर उसे पकड़ ले और वो ये कह दे कि हम तुझे छोड़ देंगे, तो जुबान से सिर्फ इतना कहो कि मेरी जगह हमारे सदर ज़ियाउल हक को ला के फांसी चढ़ा दो, तू जुबान से कह दे बस। तो बताओ यूं कहने में क्या हरज है। उसे पता तो है कि हमारा सदर इनके इख्तियार में तो है नहीं, इनका इख्तियार ही नहीं, इनकी वहां हुकूमत ही नहीं, इनकी वहां सरदारी नहीं, इनका वहां गुजरात ही नहीं चलता। जान बचाने के लिए इतनी बात कहने में क्या हर्ज था। मगर हज़रत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, उस जालिमो जुबान बंद करो और कमीनों भौंको मत, मेरी जान का तुम कीमा बना सकते हो, मगर मैं हरगिज़ ये बात गवारा करने को तैयार नहीं। मेरे आका के कदम मुबारक में कोई कांटा चुभे, मैं ये गवारा नहीं कर सकता, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरा जो चाहो करो, मेरे आका का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ना मैं अपनी जुबान से ऐसी बात कहने को तैयार। मक्के के काफिर आके कहने लगे, कोई तेरी आखिरी आरज़ू हो, कोई तेरी तमन्ना हो, कोई पैगाम किसी को देना हो। साहबी कहने लगा, सिर्फ एक आरज़ू और सिर्फ एक हसरत, सिर्फ एक तमन्ना, मुझे आखिरी वक्त में 2 रकात नमाज अदा करने दो। हाँ, तुम तो जवानी में नमाज नहीं पढ़ते, तुम तो मजदूरी करने में नमाज नहीं पढ़ते, तुम तो खाली बैठे हुए नमाज नहीं पढ़ते, तुम तो कंजरियों के गीत सुनते हुए टेप पर बैठे सारा दिन बर्बाद कर देते हो, नमाज नहीं पढ़ते। माशाअल्लाह। औरतें गप्पे मारती रहेंगी, नमाज नहीं पढ़ेंगी, खाएंगी अच्छा, पहनेंगी अच्छा, नमाज पढ़ते हुए नाग लड़ता, नमाज नहीं पढ़नी। साहबी मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कहने लगा, आखिरी वक्त में मुझे 2 रकात नमाज अदा करने दो। इजाजत देगी मक्के वालों ने। साहबी ने वुज़ू किया, 2 रकात नमाज अदा की और दुआ मांगी, इलाही मैं सूली पे चढ़ने वाला हूं, मैं फांसी लगने वाला हूं। अपने आप को खिताब करके खुबाब कहता है, और मेरी जान ईमान और इस्लाम के लिए सूली चढ़ जा, और मेरे चमड़े तू ढड़ जा, और मेरे लहू तू बह जा, और मेरी चर्बी तू खुश्क हो जा, और ऐ मेरी रूह तू जाकर काली कमली वाले से मेरा आखिरी सलाम कह दे, मेरा आखिरी सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा दे। इधर मक्के वालों ने हजरत खुब्बाब को फांसी चढ़ाया, खुब्बाब को, और उधर जिब्रील ने हुजूर की खिदमत में खुब्बाब का सलाम पहुंचाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, ओ मदीने वालों, मेरे खुब्बाब को मक्के वालों ने फांसी चढ़ाया। साहबे किराम ने पूछा, आपको कैसे पता चला? फरमाया, जिब्रील उसका सलाम लेकर आओ। आखिरी सलाम फांसी चढ़ते वक्त, सूली चढ़ते वक्त साहबी ने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया। आज हम मरते वक्त किसी को दुरूद शरीफ याद नहीं, किसी को इस्तिग़फ़ार का मिजाज नहीं, कुरान करीम के आदी नहीं,
या बच्चों की तरफ ध्यान रहेगा, या बीवी की तरफ ध्यान रहेगा, या बंगले और कोठी और मकान की तरफ तवज्जो रहेगी, या अपने कारोबार की तरफ ध्यान करते, गर्जे के दुनियाई का ध्यान करते करते हम लोग मर जाते हैं। हमें मरते वक्त हुजूर का तसव्वुर भी नसीब नहीं, दुरूद शरीफ भी नसीब नहीं। बेशुमार सहाबा इकराम हैं इस किस्म के जिन्होंने कुर्बानियां दी। आज सहाबा किराम की कुर्बानियों की कदर करने के बजाय उनका मजाक, उनके खिलाफ, उनकी तवज्जो को अपनी तरफ से हटाना क्या तरीका कार है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जमात तैयार की, निगाह नबूवत से तैयार की, खुद तालीम दी, खुद उनका तज़किया नफ्स किया, खुद उनके दिलों को जिला बख्शी और ऐसी फौज तैयार की कि 10-10 दिन के भूखे भी कुफ्फार को खा जाया करते थे, कई दिन के प्यासे भी कुफ्फार को तबाह कर दिया करते थे। हाँ, कुरान करीम पढ़ करके देखो, कुरान इनकी तारीफ करता है कि ये तो मरना जानते थे, ये आगे बढ़ना जानते थे, ये पीछे हटना जानते ही न थे। यहूदियों को ठिकाने लगाया था सहाबा इकराम। आज अमेरिका के यहूदी, आज रूस के यहूदी, आज इसराइल के यहूदी, आज हिंदुस्तान के यहूदी, आज पूरी दुनिया के यहूदी हमारे बारे में ये जान चुके हैं कि अब ये मुसलमान कच्चे पक्के ही हैं, ये वो मुसलमान नहीं, ये वो बिलाल वाली मुसलमानी नहीं रखते, ये सलमान फारसी वाली मुसलमानी इनके पल्ले नहीं, फारूक आजम वाला इस्लाम इनके पल्ले नहीं, ये मकर करते हैं। नमाज भी पढ़ ली, मस्जिद में भी चले गए, मेले ठेलों में भी चले गए, उर्सों में जाकर के सजदे भी कर लिए, नाच गाने भी कर लिए और दबड़क दबड़क ढोल खूब बजाए और फिर जन्नत का सीधा रास्ता। खुदावंदी करीम ने ऐलान कर दिया, मेरी रजा सिर्फ एक सूरत में है, आओ अपने नफ्स को, अपनी मर्जी को, अपनी रजा को, अपनी तमन्ना को, अपनी ख्वाहिशात को मेरे सामने कुर्बान कर दो। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। माशाअल्लाह। लोगों आओ मेरे साथ कारोबार करो, जान मेरे हवाले करो और मेरी रजा खरीद लो, मेरी जन्नत खरीद लो, मेरे बनाए हुए आला दर्जे के बाला खाने खरीद लो, ये तुम्हारे लिए मैंने बनाए। तो मुसलमान कभी भी अपने आप को पीछे नहीं रखता। आज हिम्मत बांधो, प्रैक्टिस करो, फौजी तैयारी करो, जुर्रत पैदा करो, बहादुरी पैदा करो, बदमाशी छोड़ो। जिनाकार कौम कभी मुजाहिद नहीं बना करती। फरमाया ला यज़नी ज़ानिन हुवा मुमिनुन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ानी जिस वक्त जिना करता है उसका ईमान निकल कर चला जाता है। ला यस्रिकु सारिकुन हीना मुमिनुन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया चोर जब चोरी करता है उसका ईमान निकल कर दूर चला जाता है। चोरी छोड़ो, जिना और बदकारी छोड़ो, बदमाशी छोड़ो, बदअमाली छोड़ो, मिलावट को तबाह कर दो, नीयतों को साफ कर लो, फिर देखो कुदरती दिल में कितना बड़ा जज्बा पैदा हो। वरना बदमाश कौम कभी मुजाहिद नहीं बना करती। क्या खेल बन गया, अच्छे भले समझदार लिखे पढ़े गाने बजाने में फंस करके रह गए। सुभान अल्लाह। मस्जिद में ढोल तो बजा नहीं सकते, थोड़ी सी शर्म आती है, आगे चलकर शायद वो भी शुरू हो जाए। हारमोनियम शरंगी तो नहीं खरीदा सकते, मगर सुबह को नमाज के बाद कुरान नहीं पढ़ते। हर आदमी लाउड स्पीकर खोल के लगा हुआ है, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे, कुरान नहीं पढ़ते। पता नहीं काहे में लुत्फ आया सवेरे सवेरे, नाश्ते में लुत्फ आया, कुछ खीर खाने में लुत्फ आया, कहीं नहीं काहे में लुत्फ आया।
غزلیں گاتے ہیں مسجد میں، ہر وقت قرآن نہیں پڑھتے. اور میں کہتا ہوں خدا کے قرآن کی چوری نہ کرو، خدا کے قرآن سے منہ نہ پھیرو، لوگوں کی توجہ نہ ہٹاؤ. اللہ پاک کہتا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سبحان اللہ. اللہ پاک کے نبی نے فرمایا جس گھر میں. تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.